जय राधा माधव कुंज विहारी। जय राधा माधव कुंज विहारी। जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जनरंजन। यशोदानंदन व्रज जनरंजन। यमुना तीरा वनचारी। यमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज विहारी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद। श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। भज श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद। श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। जय प्रभुपादा जय प्रभुपादा जय प्रभुपादा श्रील प्रभुपादा। जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा। हरिनाम संकीर्तन महोत्सव की जय। भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। निताई गौर परमानंद हरि बोल। So today we'll be taking
1.16.3 onwards. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devem Saraswatim Vyasam Tato Jayamudirahet Nasyaprayeshu Bhadreshu Nityam Bhagavad Sevaya Bhagavati Uttama Shloke Bhaktir Bhavati Nashtuki. 1.16.3 1.16.3 onwards. 3 आज हारा स्वमेधात्रीन् गंगायां भूरि दक्षिणान् सारद्वत्तं गुरुं कृत्वा देवयत्राक्षिगोचराः आज हारा स्वमेधास्त्रीन् गंगायां भूरि दक्षिणान् सारदत्तं गुरुं कृत्वा देवायत्राक्षिगोचराः आज हारा अश्वमेधास्त्रीन् गंगायां भूरि दक्षिणान् सारद्वत्तं गुरुं कृत्वा देवायत्राक्षिगोचराः. व्हाट मीनिंग? आज हारा संपन्न किया अश्वमेध यज्ञ तीन गंगायाम गंगा तट पर भूरे पर्याप्त दक्षिणाएं पुरस्कार सारद्वत्तम कृपाचार्य को गुरु कृत्वा चुनकर देवतागण यत्र जहाँ पर अक्षी आंखें गोचराः दृष्टिगत. ट्रांसलेशन परपोर्ट बाय हिज डिवाइन ग्रेस भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद. महाराजा परीक्षित ने कृपाचार्य को अपना गुरु चुनने के बाद गंगा के तट पर 3 अश्वमेध यज्ञ किए. इन्हें आगंतुकों एवं निमंत्रितों को पर्याप्त दक्षिणा देकर संपन्न किया गया. इन यज्ञों के में सामान्य लोग भी देवताओं का दर्शन पा सके. So purport, if any one of you want to help me in reading the purport. শ্রীজগন্নাথজি পড়বেন purport তাৎপর্য. আচ্ছা ঠিক আছে. 3 নম্বর শ্লোক পড়ুন. মাইকের কাছে মুখটা নিয়ে আসেন, শব্দ কম. আচ্ছা এখন শুনতে পাচ্ছেন? ক্লিয়ার, পরিষ্কার. আচ্ছা সব ভক্তদের চরণে দণ্ডবত প্রণাম. আপনাকে থ্যাংক ইউ আমাকে সুযোগ দেওয়ার জন্য. আচ্ছা তাৎপর্য এই শ্লোকটি থেকে বোঝা যায় যে উচ্চতর লোকের অধিবাসীদের পক্ষে গ্রহ থেকে গ্রহান্তরে ভ্রমণ করা খুবই সহজ. পরাক্রমশালী রাজা মহারাজা কর্তৃক অনুষ্ঠিত যজ্ঞে যোগদান করার জন্য স্বর্গের দেবতাদের এই পৃথিবীতে আসার বহু বর্ণনা শ্রীমদ্ভাগবতে রয়েছে. এই শ্লোকে আমরা দেখতে পাই যে মহারাজ পরীক্ষিতে অশ্বমেধ যজ্ঞ সাধারণ মানুষেরও স্বর্গের দেবতাদের দেখতে পেয়েছিলেন. স্বর্গের দেবতারা সচরাচর সাধারণ মানুষের গোচরীভূত হন না, ঠিক যেমন ভগবান সকলের গোচরীভূত নন. ঠিক যেমন ভগবান সকলের গোচরীভূত নন, কিন্তু ভগবান যেমন তার অকৃত্রিম কৃপার প্রভাবে এই পৃথিবীতে অবতরণ করে সাধারণ মানুষের দৃষ্টিপথে প্রকাশিত হন, তেমনি স্বর্গের দেবতারাও তাদের স্বীয় কৃপা অবশ্যই সাধারণ মানুষের গোচরীভূত হয়েছিলেন. যদিও স্বর্গের দেবতারা পৃথিবীর অধিবাসীদের জন্ম চক্ষে প্রকাশিত হন না, কিন্তু মহারাজ পরীক্ষিতের প্রভাবে দেবতারা দৃষ্টিপথে প্রকাশিত হয়েছিলেন. মেঘ যেমন ভারী বর্ষণ করে এই সমস্ত যজ্ঞে রাজারা তেমনি উদারভাবে দান করতেন. মেঘ হচ্ছে জলের রূপান্তর, অথবা বলা যায় যে পৃথিবীর জলে মেঘে যজ্ঞে তা দান করতেন. বৃষ্টি যেমন অজর দ্বারাই একটু ভুল হয়েছে, মেঘ হচ্ছে সকলের রূপান্তর, অথবা বলা যায় যে পৃথিবী চলেই মেঘে পরিণত হয়, তেমনি রাজারা প্রজাদের কাছ থেকে কর সংগ্রহ করে এই ধরনের যজ্ঞে তা দান করতেন. বৃষ্টি যেমন অজর ধারায় ঝরে এবং তখন মনে হয় যেন প্রয়োজনের অতিরিক্ত ভারী বর্ষণ হচ্ছে, তেমনি রাজারা যে দান করতেন তা নাগরিকদের প্রয়োজনের অতিরিক্ত বলে মনে হতো. তৃপ্ত নাগরিকরা কখনো রাজার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে না,
এবং তাই তখনকার দিনে রাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের কোনো পরিবর্তন করার প্রয়োজন হতো না। মহারাজ পরীক্ষিতের মতন রাজাকেও সদ্গুরু নির্দেশ গ্রহণ করার প্রয়োজন হতো। এইভাবে পরিচালিত না হলে পারমার্থিক জীবনে উন্নতি সাধন করা যায় না। গুরুকে অবশ্যই সদ্গুরু হতে হয় এবং আত্মতত্ত্ব জ্ঞান লাভ ইচ্ছুক মানুষকে প্রকৃত সাফল্য লাভের জন্য অবশ্যই সদ্গুরু আশ্রয় গ্রহণ করতে হয়। হরি বল, হরে কৃষ্ণ, দণ্ডবত প্রণাম। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकथा मह्यं ददाति सुपदेकं वन्देऽहं श्रीगुरुश्रितापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवां च श्रीरूपं सागरजातं सागरं रघुनाथान् विघ्नतं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणः ललिता श्रीविशाखान्वितां च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपति गोपेशा गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते तप्तगतन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय वाञ्छाकल्पतरु वैश्य कृपा सिन्धुवेव च पतिता नाम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठपत्र श्रीमती पताका समन्वित नामने नमाचार्य पादाय निताय कृपा प्रदान गौर दामोदाय नगर ग्राम ताणे नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठपत्र श्रीमती भक्ति वेदांत स्वामिनित नामने नमस्ते सुंदर गौरवाणी प्रचारणी निर्वास। जय श्री कृष्ण हरे कृष्ण। तो सभी लोग अपना वीडियो ऑन कर दें ताकि हम एक दूसरे को देख सकें। तो ये इम्पर्सनली पर्सनल क्लास हो जाएगी। प्लीज पुट ऑल योर वीडियोज ऑन सो दैट वी कैन सी वन अनदर। Otherwise, we'll become impersonalist instead of being the personalist. Very good. Yeah. Everybody put on the videos. तो नैमिषारण्य में बैठे सोनका के संरक्षण में एकत्र हुए वैष्णवजन को आज सूत गोस्वामी बता रहे हैं कि परीक्षित महाराज ने कार्यभार तो संभाला लेकिन गुरु को भी अपॉइंट किया। आज के लिए धारणा बन चुकी है आप किसी को भी गुरु बना लो, चाहे आप गुरु को जानते हो ना जानते हो, गुरु से मंत्र दीक्षा प्राप्त किए न की हो। जैसे आजकल हमारे स्कूल में चल पड़ा है कि परपादी सबके गुरुओं, बाकी हमें कोई गुरु की जरूरत नहीं है। यहां देखिए परीक्षित महाराज जैसे महान व्यक्तित्व, महान विद्वान, उन्होंने भी कृपाचार्य जो जिंदा थे वो अपने कृष्ण भगवान को गुरु मान सकते थे, औरों को मान सकते थे, लेकिन नहीं, जो जिंदा है जिनसे शिक्षा ली जाती है उनको गुरु माना। उनके आध्यात्मिक गुरु तो सुखदेव गोस्वामी थे, लेकिन ये भौतिक गुरु हैं कृपाचार्य, और उनसे उनके कहे अनुसार उन्होंने अपना जीवन का और अपने राजपाट का तरीका चुना। तो गुरु को हम चुन सकते हैं या गुरु हमको चुनता है, दोनों चीज होती हैं। कभी कभी भक्त लोग गुरुओं को चुनते हैं, आस्था बनाते हैं, आस्था डेवलप करते हैं, फिर गुरु की शरणांगा जाते हैं। लेकिन कई बार, एक बार नहीं हजारों बार, गुरु कहते हैं कि तुम शिक्षा ले लो। हमारे पूरे परिवार के साथ मेरे को छोड़ करके सबको गुरु महाराज ने कहा पर्सनली। जब मेरी दीक्षा हो गई कुछ साल के उपरांत, गुरु महाराज ने मुझे पूछा कि तुम्हारी पत्नी ने दीक्षा क्यों नहीं ले रही है। मैंने कहा महाराज मैं उसको पूछूंगा। तो जैसे हम सामने आए, बोलो क्यों नहीं दीक्षा ले रहे हो। बोलो महाराज तुम तैयार हूं। बोलो ठीक है दीक्षा ले लो। ठीक इसी प्रकार हमारी बिटिया, जब यहां धर्मालय हुआ करता था, गुरु महाराज धर्मालय में मिले और उसको बोला क्या तुम दीक्षा नहीं ले रही हो। बोले गुरु महाराज लूंगी। कब लोगी। बोले जब आप कहेंगे। बोले ठीक है जब अगली बार आऊंगा तो दीक्षा लेना। तो इसको भी गुरु महाराज ने कहा दीक्षा लेने के लिए। एक बार हम मायापुर में थे पूरी फैमिली के साथ, गुरु महाराज वहां मिले नहीं। गुरु महाराज तब साउथ अमेरिका टूर में थे, हमको वापस आना था। तो जब वापस आ रहे थे हम ड्राइवर से कह रहे थे यार इतनी दूर से मायापुर आए, गुरु महाराज नहीं मिले। वो हमारी बातें सुन रहा था। अचानक गदावार एक जगह है
वहां उसने बोला वो गुरु महाराज की गाड़ी है, गुरु महाराज की गाड़ी। हम फौरन गाड़ी रोकी। गुरु महाराज वहां केले लेने गए थे, केले लेने के लिए, वो छोटे छोटे केले, वो जो बोलते हैं केरला ही केला, छोटे छोटे केला, केला छोटा छोटा केला। तो गुरु महाराज ने हमें देखा, गुरु महाराज बड़े खुश हुए, बोला कहाँ जा रहे हो? हमने हम मायापुर से वापस आ रहे हैं। तो गुरु महाराज ने बहुत गुस्सा किया, तुम्हें मालूम है मैं आ रहा था वापस, चलो वापस चलो। हमने कहा महाराज हमारी टिकट है, ये है, सो है, सो है। तो मेरे लड़के को बोला कि मैं तब जाने दूंगा जब तुम बोलो कि मैं दीक्षा लेने के तैयार हूं। तो लड़का हाँ महाराज मैं तैयार हूं। तो ये जून जुलाई की बात थी। तो गुरु महाराज ने कहा मैं दिसंबर के महीने आ रहा हूं सिडनी, तैयार है ना? और हमारे बच्चे ने भी गुरु की आज्ञा का पालन किया और गुरु जी ने उनको दीक्षा दी। अब फायदा क्या हुआ? फायदा ये हुआ कि गुरु महाराज इनको पकड़ के दीक्षा दी। ये सब प्रवीण बने दीक्षा उसमें, भागवत कथा में अच्छी भागवत कथा करते हैं, खूब अच्छा कीर्तन करते हैं, अच्छे से गाने गाते हैं। और हमने तो गुरु महाराज को वैसे लोगों ने बोले कर दिया, तो हमको देखिए गाना भी नहीं आता। तो इतना फर्क होता है, अगर गुरु की कृपा हो तो सब कुछ हो जाता है। हमको गुरु महाराज नहीं बोला, हम तो खुद बोले गुरु महाराज दीक्षा देते हैं, बोला अच्छा दे देते हैं। हमने पूछा और उन्होंने बोला, कितना फर्क पड़ता है। तो गुरु की आवश्यकता है, कम से कम आध्यात्मिक गुरु की तो बहुत आवश्यकता है। बिना गुरु की ज्ञान, बिना गुरु के ज्ञान नहीं है। क्या परीक्षित जैसे महाराज को, महाराज धीराज को, जिनके चर्चे स्वर्ग में भी थे, उनकी गुरु की जरूरत थी? क्या भगवान श्री कृष्ण को संदीपन मुनि की जरूरत थी? क्या भगवान श्री राम को वशिष्ठ की जरूरत थी? क्या जनक जैसे महाराज को अच्छा नाम उनके गुरु का, वशिष्ठ के बेटे हैं, अभी नाम याद है। तो क्या उनको जरूरत थी? नहीं। आध्यात्म के लिए गुरु की जरूरत है। बिना गुरु के ज्ञान, बिना गुरु को ज्ञान नहीं मिलता है। और जब ज्ञान मिल जाता है तो क्या होता है? तो श्रीमद् भागवतम कहती है वासुदेव परा वेदा, वासुदेव परा मखा, वासुदेव परा योगा, वासुदेव परा क्रिया, वासुदेवं परम ज्ञानम, वासुदेवं परम तप, वासुदेव परो धर्मो, वासुदेव परा गति। जब ज्ञान प्राप्त हो जाता है तब भगवान के बारे में पता चलता है कि भगवान वेदों से भी दुर्लभ हैं। वेदेश एवं अहवेद वेद्य, फ्रॉम द वेदास आई एम टू बी नोन। और जितनी भी सेक्रीफाइसेस हैं वो भगवान से परे हैं। जो भी योग हैं, जितनी योग सिद्धि हैं, वो भी भगवान से परे हैं। जितनी क्रियाएं हैं वो भी भगवान से परे हैं। जो ज्ञान है, कृष्णस्तु भगवान स्वयं। देखिए हमें भी मालूम है और आपको भी मालूम है, लेकिन हमको सिर्फ मालूम है, हम इसके बारे में हमें कोई ज्ञान नहीं है। वासुदेव परम तप, वासुदेव तप से भी परे हैं। वासुदेव परो धर्मो, वासुदेव धर्म से परे हैं। वासुदेव परागति, और वासुदेव जो है गति से परे हैं। ये मैं आपको एक कहानी सुनाऊं, इसलिए सुना रहा हूं ताकि हमें पता चले कि हम भी भगवान के बारे में जानते हैं। ये कहानी आप सुन लीजिएगा। एक बार एक तोता था, तो जंगल में जो शिकारी होते थे तोतों को पकड़ने के लिए एक रस्सी डालते थे, और रस्सी पे जो है एक पाइप डालते थे, पाइप। तो पाइप जो है वो रोल हो जाता है, तो और नीचे दाना डालते, तोते उड़ के आते, जैसे वहां अपने पंजे रखते पलट उलट जाते, और उलट जाने बाजे वो शिकारी को पकड़ लेता। तो एक बार किसी महात्मा ने देखा, बोले तो बड़ी गलत बात है। तो तोतों को बुलाया, सिखाया कि देखो अगर कभी तुम्हें शिकारी आए और तुम उलट जाओ तो अपने पैर छोड़ देना, अपने पैर छोड़ देना, तुम जिंदा बच जाओगे। क्योंकि तुम लटके रहते हो दिन भर, शिकारी आराम से आता तुमको पकड़ लेता।
तुम पैर नहीं छोड़ते हो। सब तोतों ने कहा कि अगर शिकारी आएगा, हम उसके चंगुल में फंस गए, अगर हम उल्टे हो गए तो हमें पैर छोड़ने हैं। सबको मालूम है शिकारी आएगा, अगर उलट गए तो पैर छोड़ने हैं, हम बच जाएंगे। हुआ ऐसा, एक बार फिर शिकारी आया, ये तोते आए, उसमें बैठे, तोते उलट गए तो बोल रहे हैं कि गुरु ने बोला था कि हाथ पैर छोड़ने हैं, पंजे छोड़ने हैं, छोड़े किसी ने नहीं। फिर शिकारी आया, उनको पकड़ के ले गया। तो हमारी कहानी भी तोते जैसी है। हमें मालूम है कि भगवान की शरणागति जाना है, भगवान के चरणों की सेवा करनी है, वैष्णवों की सेवा करनी है, श्रीमद् भागवतम का अध्ययन करना है, सब कुछ करना है, लेकिन करते नहीं है। मालूम है, ज्ञान है, लेकिन जैसे परीक्षित जैसे महाराज ने अपने राज्य को चलाने के लिए सबसे पहले कृपाचार्य को जो है अपना गुरु बनाया, और उनके आदेश में उन्होंने अश्वमेध यज्ञ किए। अश्वमेध यज्ञ कहा कि जो घोड़ा, अश्व माने घोड़ा, जिसकी बलि दी जाती थी, उससे प्रॉमिस किया जाता था कि जब हम तेरी बलि देंगे, तेरी आत्मा को जो है मनुष्य शरीर मिलेगा, और अगर उस आत्मा को मनुष्य शरीर नहीं मिला तो अश्वमेध यज्ञ नहीं माना जाता था, वो खंडित हो जाता था। तो ये कहानी थी अश्वमेध यज्ञ। इन्होंने 3 अश्वमेध किए, तो जितने घोड़े मारे उनको जो मनुष्य शरीर मिला, तभी उनको जो है माना जाता है कि अश्वमेध यज्ञ पूर्ण हुआ, नहीं तो नहीं होता था। अब वो अश्वमेध को यज्ञ को देखने के लिए डैनिजन से विद्याधारा, चरणाधराज, गुह्यकाज एंड देवताज सब लोग आते थे, पृथ्वी में आते थे। लेकिन जब देवता लोग पृथ्वी में आते हैं तो पृथ्वी पर पैर नहीं रखते, पृथ्वी से ऊपर पृथ्वी में पैर नहीं रखते। जब देवता लोग यहां आते हैं पृथ्वी पैर नहीं रखते हैं। कहां दिखाई देता है आजकल? लेकिन गुरु महाराज ने एक बार कहा, एक बार गुरु महाराज के उन्होंने एक कथा का आयोजन किया, बहुत इनविटेशन भेजे, इनविटेशन में कोई नहीं आया। 4-5 लोग थे, आई थिंक श्याम सुंदर प्रभु थे, मालती माता जी थी, ये सब थे। तो प्रभुपाद जी बैठे, जय राधा माता किया, पूरे करीब 30-35 मिनट की क्लास दी, क्लास बंद किया। उसके बाद सब लोग आते हैं, प्रभुपाद के पैरों में गिरते हैं कि प्रभुपाद हमें क्षमा कीजिए हमारी धीरजता के लिए, हम लोगों को नहीं इकट्ठे कर पाए। तो प्रभुपाद ने हंसते कहा, अरे लोगों की क्या जरूरत थी, इतने देवी देवता लोग आ रहे थे कथा सुनने के लिए, इनकी क्या जरूरत है। तो यानी प्रभुपाद जी ने भी इन देवी देवताओं को आते हुए देखा, इसलिए प्रभुपाद जी अपनी कथा करते थे तो बड़े सोच विचार करके, कोई उल्टी सीधी बात नहीं करनी, ध्यान से, क्योंकि सुनने वाले कौन आए? देवता लोग आए हैं। क्यों आए? उनको भगवान से प्यार है, इसलिए वो कथा करते थे। तो परीक्षित महाराज ने जब भी यज्ञ किए, उस वक्त सारे के सारे देवता थे, आते थे और वहां प्रसाद ग्रहण करते थे, और तब वो जो है यज्ञ संपूर्ण होते थे। अब यज्ञों से क्या हुआ? यज्ञों का मतलब है विष्णु की तुष्टि। ओम तद पदम परम विष्णु समर्पयामि नमः। तो क्या हुआ, जब सारे कार्य भगवान के लिए थे तो भगवान ने मरते वक्त जो है शब्द रूप में उनके हृदय में चले गए। परविष्टा कर्ण रंगेना, भगवान परमात्मा तो थे, हर हृदय में रहते हैं, लेकिन यहां कृष्ण भगवान अपनी वाणी के द्वारा उनके कर्णों से उनके हृदय में पहुंच गए। तो यह था भगवान की भक्ति का जो पुरुषार्थ है, वो यही है भगवान का स्मरण, सतत, हर समय, हर वक्त। जब परीक्षित महाराज का 7 दिन पूरे होने वाले थे, गुरुजी ने कहा, हे परीक्षित, सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे परीक्षित, और कुछ पूछना बाकी है। जब तक कृष्ण कथा चलेगी तब तक तक्षक यहां नहीं आ सकता है। तो परीक्षित महाराज ने कहा, नहीं, इससे तो अस्मि, आप कुछ नहीं चाहिए, आप तो मैं भगवान के परायण हो चुका हूं। लेकिन क्या देखते हैं कि दौड़ते 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 मां उत्तर आ रही है। मां उत्तर आई, ये परीक्षित सुनो 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 सुनो, क्या हो गया?
कि बेटा तुम जाने वाले हो? बोला हाँ माँ, श्राप है, लेकिन बेटा ये बताओ ना कि गुरु महाराज से क्या सीखा? तो तब जो है परीक्षित महाराज ने अपनी मां को भागवतम का सार सुनाया, जिसको हम बृहद भागवतम के नाम से जानते हैं। तो जब उन्होंने श्रवण किया, साथ में कीर्तन भी किया, परीक्षित महाराज ने अपनी मां को सारांश में सुनाया। अगर आप देव कुमार की बात सुने, गोप कुमार की बात आप सुने, तो आपको पता चलेगा। तो यानी जो श्रवण करता है उसको मरने से पहले कीर्तन करना पड़ता है। और इस प्रकार सदैव भगवान के विचारों में खोए हुए ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न सोचती न कांक्षती, तब कोई लालसा वाक्य नहीं, तब सिर्फ भगवान को पाने का, भगवान को जानने का, भगवान से सानिध्य करने का। एक जिस मरने से जग डरे मेरे मन आनंद, मरने से ही तो मिले पूरे परमानंद। हम लोग सब डरते हैं, कुछ हो जाएगा, बीमारी हो जाए, बीमारी हो गई, कुछ हो ना जाए, क्या होगा? इससे ज्यादा खतरनाक कोई चीज नहीं हो सकती मरने के अलावा। हम सब लोग डरते हैं, कोई तैयार नहीं है। और एक कथा आती है, मात मिले पुनितात मिले, सुत भ्रात मिले जुगति सुखदाई, लोक मिले परलोक मिले, विधि लोक मिले बैकुंठ भी जाई, और यहाँ सब कुछ मिले संत समागम दुर्लभ भाई, संत समागम दुर्लभ भाई। मात मिले, हमारे जितने हमारे जन्म हुए हैं हमें माताएं मिली हैं, पुनितात मिले, और जब जब जन्म हुए हमें पिता मिला, माता मिला, पिता मिला। मात मिले, पुनितात मिले, सुत भ्रात मिले, और पत्नियां मिलती हैं, या हस्बैंड मिलते हैं, भ्रातर मिलते हैं, सब कुछ मिलते हैं। मात मिले, पुनितात मिले, सुत भ्रात मिले, सुख दी सुखदाई, और सुख मिलता है, दुख मिलता है। यहाँ लोक मिले, परलोक मिले, विधि लोक मिले, वैकुंठ भी जाई, और सब यहाँ मिले, लेकिन संत समागम दुर्लभ भाई, संत समागम दुर्लभ भाई। संतों का समागम बड़ा मुश्किल है। अच्छा, एक तो संतों का समागम मुश्किल, और दूसरे में हमारा चंचल मन। अगर संत कोई मिल भी गया, आप लोग कहते हैं ना, एक घड़ी आधी घड़ी आधी में पुनिया, करे जो संगत साधु की, हरे कोटि कोटि अपराध। अगर हमें कोई मिल भी गया तो हमारा मन स्थिर नहीं, तो क्या करें इस बात का? तो परीक्षित महाराज प्रभुपाद कहते हैं कि स्वर्ग के निवासी तक ऐसे महान राजा थे, ऐसे यज्ञ करते थे कि देवता लोग भी दिखने के लिए तरसते थे। ये कैसे कर रहे हैं, कैसा मुमकिन है? हम लोगों के पास विद्या है, बुद्धि है, धन है, संपदा है, हम क्यों नहीं कर पाते? तो वो लोग आते, और महाराजा परीक्षित जैसे जो राजा हैं, मार्गदर्शन के लिए अपने गुरु को चुनते हैं। हम सब, आपको मालूम है कि जब बच्चा छोटा होता है तो माँ की उंगली पकड़ता है, जब थोड़ा बड़ा हो जाता है, अगर माँ हाथ पकड़े तो हाथ छुड़ा देता है, यू नो, आई कैन वॉक। तो क्या कहते हैं कि भगवान की उंगली कभी मत पकड़ो, भगवान की उंगली के कभी मत पकड़ो। क्यों? कि तुम्हारा जब मन आएगा तुम अपनी उंगली छुड़ा दोगे। इसलिए भगवान को अपना हाथ पकड़ाओ। अगर भगवान ने आपका हाथ पकड़ लिया ना, तो फिर भगवान आपका हाथ छोड़ेंगे नहीं। तो भगवान से उंगली मत पकड़ाओ। तुम उंगली कभी भी छोड़ सकते हो, तुम्हारे हाथ से उंगली छूट सकती है, लेकिन अगर भगवान ने एक बार आपका हाथ पकड़ लिया तो भगवान आपका हाथ नहीं छोड़ेंगे। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम्। तो इस प्रकार हम अपने भगवान से इतनी मित्रता हो, इतनी श्रद्धा हो, इतना लगाव हो कि इन महाजनों की तरह हम भी याद करें। जो कुछ पाया
उस भगवान की कृपा जो खोया अपना नसीब। तो परीक्षित महाराज अपने गुरुजनों के सहारे राजपाट को चलाया और बड़े अच्छे ढंग से चलाया। लीजिए दूसरा स्लिप लेते हैं, इसमें ज़्यादा फिलोसफी तो नहीं है लेकिन फिर भी। नंबर 4, निजग्राहो जसा वीरः कलिदिग्वजये क्वचित् निर्पलिंगधरं शूद्रं धनन्तं गोमिथुनं पदा। एक बार जब महाराजा परीक्षित विश्व दिग्विजय करने निकले तो उन्होंने देखा कि कलयुग का स्वामी जो शूद्र से भी निम्न था, राजा का वेश धारण करके गाय तथा बैल की जोड़ी के पांवों पर प्रहार कर रहा था। राजा ने उसे पर्याप्त दंड देने के लिए तुरंत पकड़ लिया। तो आप लोग कोई पढ़ना चाहते हैं परपोर्ट? ओके। মহারাজ পরীক্ষিত নিজের মহিমা প্রচার করার জন্য পৃথিবী জয় করতে বেরোননি। তিনি সিংহাসনে আরোহণ করার পর পৃথিবী জয় করতে বেরিয়েছিলেন, অন্য রাষ্ট্রকে আক্রমণ করার জন্য নয়। পৃথিবীর সম্রাট এবং সমস্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাষ্ট্রগুলি ইতিমধ্যেই তার অধীনস্থ হয়েছিল। তিনি বেরিয়েছিলেন ভগবানকে কেন্দ্র করে রাষ্ট্রগুলি পরিচালিত হচ্ছে না তার দেখবার উদ্দেশ্যে। ভগবানের প্রতিনিধি হওয়ার ফলে রাজার কর্তব্য হচ্ছে যথাযথভাবে ভগবানের ইচ্ছা সম্পাদন করা। তার কার্যকলাপে স্বীয় মহিমা প্রচারের কোনো প্রশ্ন ওঠে না। তাই মহারাজ পরীক্ষিত যখন দেখলেন যে রাজবেশ পরিহিত একটি শূদ্র একটি গাভী এবং একটি বৃষের পায়ে আঘাত করছে, তখন তিনি তৎক্ষণাৎ তাকে বন্দী করে দণ্ড প্রদান করেন। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পশু গাভীকে নির্যাতন করা হলে রাজা কখনোই তা সহ্য করতে পারেন না। তেমনি সমাজের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মানুষ ব্রাহ্মণদের প্রতি অশ্রদ্ধা তিনি কখনো সহ্য করতে পারেন না। মানব সভ্যতার উদ্দেশ্য হচ্ছে ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির প্রগতি সাধন করা এবং তা করতে হলে গোরক্ষা অবশ্য কর্তব্য। দুধ একটি অলৌকিক খাদ্য, কারণ তাতে মানব দেহের প্রয়োজনীয় সবকটি ভিটামিন রয়েছে। ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির প্রগতি হচ্ছে তখনই যখন মানুষ সত্যগুণে বিকশিত হওয়ার শিক্ষা লাভ করে এবং সেই শস্য জাতীয় খাদ্যের প্রয়োজন সবথেকে অধিক। একজন রাজবেশধারী কৃষ্ণবর্ণ শূদ্রকে মানব সমাজের সবচেয়ে পশু গাভীকে নির্যাতন করতে দেখে পরীক্ষিত মহারাজ অত্যন্ত আশ্চর্য হয়েছিলেন। ये दो ने नहीं, ये क्या इधर ये नहीं पढ़ा, ये ऐसे नहीं पढ़ा। মানুষেরা তাদের কোন রকম উচ্চ আকাঙ্ক্ষা নেই, তারা রাষ্ট্রের কর্ণধারের ভূমিকা গ্রহণ করে। রাজপথে অধিষ্ঠিত হয়ে এই ধরনের মানুষেরা সর্বপ্রথমে গাভী এবং ব্রাহ্মণ সংস্কৃতিকে আঘাত করে এবং তার ফলে সমগ্র সমাজ নরকগামী হয়। উপযুক্ত শিক্ষায় শিক্ষিত মহারাজ পরীক্ষিত এই পৃথিবীর সমস্ত কলহের মূল কারণ উপলব্ধি করেছিলেন। তাই তিনি এই কারণটি অঙ্কুরেই বিনাশ করতে চেয়েছিলেন। হরি বল। निज ग्राहो जसा वीर कलि दिग्विजये क्वचित निर्पलिंगधरं शूद्रम। माइक म्यूट है प्रभु, सुनाई नहीं दे रहे। हरे कृष्ण। निज ग्राहो जसा वीर कलि दिग्विजये क्वचित निर्पलिंगधरं शूद्रम गणतम गोमिथुनम पदा। एक बार जब महाराज परीक्षित विश्व दिग्विजय करने के निकले तो उन्होंने देखा कि कलयुग का स्वामी जो शूद्र से भी निम्न था, राजा का वेश धारण करके गाय तथा बैल की जोड़ी के पांवों पर प्रहार कर रहा था। राजा ने उसे पर्याप्त दंड देने के लिए तुरंत पकड़ लिया। सो कलिमागतम आज्ञाय है। कलिग आना का मतलब प्रायेण आयुषभ्य कलावस्मिन् युगे जना मंदासु मंदमतियो मंदभाग्या ही उपद्रता। कली के जमाने में
उपद्रता ही उपद्रता है। कलो दोषे निधि राजन, इस कली में इतने दोष हैं कि गिनने पर भी खत्म नहीं होंगे। अस्ति एको महान गुणान, लेकिन एक गुण इसमें है। वो जो गुण है कीर्तनाद एव कृष्णस्य, जो भगवान कृष्ण के नामों का गुणगान करेगा, लीलाओं का चिंतन मनन करेगा, मुक्त संग परम वर्जेत, वो संग से दूर हो जाएगा। संग यानी कौन सा संग? इंद्रिय तृप्ति वाला संग, उससे आदमी दूर हो जाएगा। तो महाराजा परीक्षित ने देखा कि एक उदंड, जो वेश तो राजा का था लेकिन कार्य राजा से निम्न। कई बार हम लोग धोखा खा जाते हैं। आज सुबह एक बड़ी अच्छी हमारी चर्चा हो रही थी। किसी ने मुझे प्रश्न किया कि देखिए, भगवत गीता का जो पहला अध्याय है वो क्या है? उसमें तो जिहाद है। क्यों है कि नहीं? उसमें जिहाद है कि नहीं है? मार काटने की बात हो रही है, इसको मारो उसको मारो, ये करो वो करो, ये भी तो जिहाद है। हमने कहा ये जिहाद नहीं है। अगर ये जिहाद होता तो बताइए कौन कौन से ग्रुप दुनिया में हैं जो भगवत गीता को लेकर जो अपना ग्रुप बनाए और जिहादी कर रहे हो? ये जिहाद नहीं है। ये तो आतताइयों को मारने के लिए, जो धर्म को नष्ट करते हैं, मनुष्य विशेष के लिए है, जाति विशेष के लिए नहीं है। तो लोग न समझते, कहते हैं भाई जिहाद इसमें भी उसमें भी है, तो क्या तुम्हारा जिहाद बड़ी, हमारा जिहाद खराब है? और हमने कहा भगवत गीता अगर पूरी आप पढ़ डालो, भगवान कृष्ण ने कहीं भी नहीं कहा तुम ये करो। भगवान ने तो आत्मा का ज्ञान दिया, परमात्मा का ज्ञान दिया, काल का ज्ञान दिया, कर्म का ज्ञान दिया और समय का ज्ञान दिया। लेकिन ना समझो तो क्या किया जाए। तो कई बार लोगों का जो आजकल श्रीमद् भागवत अगर आप पढ़ते हो, 12 घंटे पढ़े, तो कहते हैं कली के जमाने में जो जोर से बोलेगा उसको बड़ा पढ़ा लिखा माना जाएगा, जो अच्छे वस्त्र पहनेगा उसको ही समाज में जो है कार्य कुछ भी करे उसमें उसकी प्रतिष्ठा होगी, जो जितना झूठ बोलेगा उसको बोलते हैं इसकी कितनी अच्छी वाक् पटुता है। सब उल्टे 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 उल्टे, और ये हो रहा है आजकल। बड़े बड़े लोग इन अपने सफेद कपड़ों के पीछे बड़े काले एक बार हम किसी अपने दोस्त से कह रहे थे, जब हमारे बाल काले से सफेद हो जाते हैं ना, ध्यान से सुनिए, जब हमारे बाल काले से सफेद हो जाते हैं हम उनको फिर काला करते हैं। क्यों? भगवान कहते हैं अरे उम्र हो रही है, काले धंधे छोड़ो, बाल सफेद हो गए। हम बोलते नहीं, हमें भी और काले धंधा करेंगे। तुम मना करने वाले कौन होते हो? दो अपने सारे बाल काले करके। हम ओरिजिनल पे विश्वास नहीं करते। एक बार कहीं महफिल थी, एक आदमी की कुत्ते की आवाजें भौंक रहा था उस स्टेज पे, इतना बढ़िया भौंक रहा था, इतना बड़े भौंक रहा था कि गली से 3-4 कुत्ते जो है स्टेज में आ गए। जब 3-4 कुत्ते स्टेज में आ गए, लोगों ने कुत्तों को भगा दिया। बोला नहीं तुम कुत्ते नहीं, ये कुत्ता बढ़िया है जो भौंक रहा। आप बताएं, ऐसी तो हमारी धारणा है। हम लोग ओरिजिनल पे विश्वास नहीं करते हैं, आर्टिफिशियल आर्टिफिशियल आर्टिफिशियल। तो ये जो निम्न जो शूद्र था, जो राजा का रूप था, जो कली का भी जो खुद कली है, वो जो है राजा के रूप में दंड दे रहा है। किसको दंड दे रहा है? जो दंडनीय है ही नहीं। कभी आप अपने यार दोस्त है ना, आप बोलें कि तुम्हारा बच्चा गधा है, तो आपको गुस्सा आएगा ना कि मेरे बच्चे गधा बोलता है। बोलो अरे तेरा बच्चा तो शेर है, तो क्या फर्क पड़ा? शेर भी जो जानवर है, गधा भी जानवर है, फर्क क्या पड़ा? लेकिन किसी ने हमारे बोला तुम्हारा बच्चा गधा है तो हमें गुस्सा आता। बोला तेरा बेटा शेर है, तो हाँ यस ठीक बोल रहे हो, मेरा बच्चा शेर है। अरे दोनों जानवर हैं भाई, ये तो मैं नहीं समझ आती।
हम समझते हैं कि शेर जो है उच्च कोटि का जानवर है, गधा निम्न कोटि का जानवर है। अरे उच्च कोटि या निम्न कोटि है तो 4 पैर वाले, है तो जानवर। ये हमें समझ नहीं आता। तो श्रीमद् भागवत अगर आप देखें, पढ़ें आप, बड़ी दयनीय दशा है। जो कुछ हम देख रहे हैं, कुछ हम देखेंगे। और इसके लिए क्या है, अगर बाहर बारिश हो रही हो तो हमारा कर्तव्य बनता है कि छाता लेके जाएं। कुछ ना कुछ बारिश में बच सकते हैं। छाता लेकर के बारिश बंद नहीं हो जाएगी। छाता लेकर के हम जो है अपने आप को बचा पाएंगे किस हद तक। ठीक इसी प्रकार ये कली का समय है। हम जब तक जो अपने अस्त्र शस्त्र लेके नहीं चलेंगे, हमें भी इसका प्रभाव होगा। हमारी जो AK-47 राइफल है वो हमारी चैंटिंग बीट है, चैंटिंग मंत्र है, वो हमारा आर्सेनल है। वो हमको स्वयं हमारी आत्मा की रक्षा करेगा, हमारे शरीर की रक्षा करेगा। ये बहुत जरूरी है। लेकिन जैसे मैं तोते की कहानी सुना रहा था, हमें सब मालूम है, हाँ ठीक है, करते नहीं है। हम लोगों को इतना अच्छा विचार हमारे, हम शांत बैठे रहते हैं। जैसे ही अपना हाथ माला में डाला, माला को पकड़ा, आहा क्या क्या विचार, अब हम ये करेंगे, अब हम वो करेंगे, अभी हम यहां जाएंगे, वो करेंगे, क्या विचार आते हैं, वाह 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 वाह। और जैसे माला रखी, विचार सारे शांत। जब शांत होना तब अशांत, जब हमें शांत हो तब हम अशांत हैं, और अशांति में शांति की ढूंढ कर रहे हैं। तो क्या है, हम समझते हैं, हम जानते हैं, कर नहीं पाते। और कल करेंगे। कल युग यानी कल युग, जो युग कल आएगा, आज नहीं। हम कल से करेंगे, हर चीज कल से करेंगे। भागवत हम कल पढ़ेंगे, सत्संग कल करेंगे, ये सब कल करेंगे। अरे हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा। जब दशरथ महाराज विश्वामित्र के पास गए, कहने लगे बेटा का राज्याभिषेक करना है, कौन सा दिन अच्छा रहेगा? तो वशिष्ठ ने कहा सारे मुहूर्त ठीक हैं, अभी भी कर डालो, इसी वक्त कर डालो। तो दशरथ महाराज गए, नहीं नहीं नहीं, अभी तो घर जाके लोगों को बताना है ना, घर जाके बताना है। और फिर क्या हुआ, बताने के चक्कर में क्या हुआ, भगवान को 14 वर्ष का वनवास हुआ। और वो ऐसा वनवास था कि लोग जो है जंगल में सन्यास के लिए जाते हैं, लेकिन यहां भगवान श्री राम को यौवन में सन्यास मिला। यौवन में, यह सन्यास का टाइम नहीं था। सन्यास का टाइम तो 50 साल के बाद, 75 साल के बाद। लेकिन भगवान को जो है प्रारब्ध में ही, पहले ही उनको सन्यास मिला। क्यों? हम कल करेंगे, हम कल करेंगे, हम कल करेंगे। और कल कभी आता नहीं, और हमारी भक्ति वहीं की रह जाती है। तो आज हमारे इर्द गिर्द जो भी लोग हों, अगर हमारी साधना बराबर नहीं है, हम उनके इन्फ्लुएंस में आ जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है, बिल्कुल आ जाएंगे। कली का प्रभाव बहुत सख्त, प्रभाव से बचना बड़ा मुश्किल। आगे हम देखेंगे इतना प्रभाव क्यों है। भगवान ने कहा ठीक है, तुम्हारा समय है, मैं तुम्हें समय देता हूं। इसलिए अगर हमारी साधना बराबर नहीं है तो हम कहीं भी हम फिसल सकते हैं। और फिसलने का मतलब अपने आप को चोट लगाना। जब आदमी फिसलता है, चोट अपने को लगती है, दूसरे को चोट नहीं लगती है। तो ये मान के चलिए कि हमको फिसलना नहीं है। घर से बाहर तब निकले जब आपने पूरे अपने आर्सेनल पूरे हो, चांडिंग हो गई हो, सब कुछ हो गया हो, भगवान के दर्शन हो गए हो, तब बाहर निकलो। तब जाके ये कली होते हुए भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। मां मनुष्य मन युद्ध, भगवान कहते हैं जब मेघनाथ के युद्ध के लिए लक्ष्मण जी जा रहे थे, तो लक्ष्मण ने राम से कहा भाई आगे दीजिए, मैं क्या करूं, मुझे क्या करना चाहिए? तो राम जी बहुत शानदार बात कहते हैं, जाए दलों के बीच में बस करना इतना काम, धनुष हाथ में लेकर हरि का नाम। जाए दलों के बीच में बस करना इतना काम। जब तुम दो दलों के बीच में जाओगे, भाई इतने तो काम करना है, धनुष और बाण हाथ में पकड़ो और भगवान हरि का नाम लो। तो पर करने वाला कौन? भगवान। जी तुम्हारी निश्चित।
तो जाय दलों के बीच में बस करना इतना काम, धनुष हाथ में लेकर, धनुष हाथ में पकड़कर लेकर हरि का नाम। और हम यही मार खा जाते हैं, ये जानते हुए भी तोते की तरह ये करना वो नहीं करते हम। अब कब करेंगे? वो हमारे प्रभु कहाँ है, वेंकटेश्वर प्रभु, वो बोले थे ना, इच्छा द्वेष समुत्थो न द्वंद्व मोह न भारत। जब तक हमारे शरीर से द्वंद्व नहीं जाएगा, इच्छा समाप्त नहीं होगी, भगवान का भजन कैसे कर पाएंगे? अब इच्छा कब समाप्त होगी? जब हम भगवान का भजन करेंगे, और जब हम भगवान का भजन करेंगे इच्छा समाप्त हो जाएगी। ये दोनों पर्यायवाची हैं, ये करूंगा तो ये होगा, ये करेंगे तो ये होगा। लेकिन धारणा तो हमारी है, विचार तो हमारे हैं, स्वतंत्रता तो हमारी है, स्वच्छंद तो हम है। हमें जो करना है, अगर हम करना चाहें तो कर सकते हैं, ओनली अगर करना चाहें। पंगुम लंघयति गिरिम यत कृपा तमहम वंदे परमानंद माधवम। देखिए, जो गूंगा है वो बोल सकता है, जो लंगड़ा है पर्वत को लांघ सकता है, लेकिन गूंगा श्रीमद् भागवतम के श्लोक बोलेगा, यह मुमकिन नहीं। उसके लिए गुरु की कृपा, और जब तक गुरु की कृपा नहीं होगी बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो गुरु के आगे से क्या मिलता हमें? क्या मिलता? वासुदेव परा वेदा, वासुदेव परा मखा, वासुदेव परा योगा, वासुदेव परा क्रिया, वासुदेवम परम ज्ञानम, वासुदेवम परम तप, वासुदेव परो धर्मो, वासुदेव परा गति। तभी हमारी गति होगी। तो इसके साथ ही वाणी को मैं विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।